Good evening, everyone. Thank you all for finding time and being part of this wonderful Awake series and initiative by Udan, the Motivational Society of Hansraj. A very warm welcome to the last day of the series. My name is Janvi Rai and I am the president of the society and your host for the evening. Our speaker for today is Ms. Shivangi Jandra. Before we start, let me explain how can we talk to her during the webinar. If you have any question during the presentation, just write them into the chat box. Now we can begin. Our today's speaker is the pioneer Indian blogger who initiated the most famous Queen in Making, where she talks about self-empowerment of women. Her focus, grit, and determination made her win several prestigious titles like Femina Officially Gorgeous 2016, Mrs. India Worldwide 2014, Craftsvilla Miss Ethnic 2015, Mrs. Heritage World 2015. With a multitude of national and international awards and honors, Dr. Shivangi Malaysia has represented modern Indian women at several prestigious platforms like World Health Congress, TEDx, KBC, and the list is endless. In this discerning session, Dr. Shivangi will be stancing the importance of organizing your thoughts and emotions in the right direction. The topic of today is Kalpavriksha, the law of attraction. Without further ado, let's welcome ma'am. Hello everyone, good evening. Thank you so much, Janvi. You are so charming and you're doing your job pretty well. Thank you for inviting me over. I hope अगर मैं हिंदी में बात करूं तो किसी को तकलीफ नहीं होगी यहाँ? No, or would you just want to continue in English as in how you people say? Hindi is fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. So I'll be just putting on my microphone ताकि आप लोग मेरी आवाज और clearly सुन पाएं. तो अगर किसी को कुछ कहना हो इस दौरान तो प्लीज चैट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं. And of course, as Janvi has said, कि हम लोग बाद में questionnaire session भी रख सकते हैं, wherein you people can actually ask me questions and I will be delighted to answer them all. So मेरा नाम डॉक्टर शिवांगी मलेटिया है. जानवी ने बहुत खूबसूरती से मेरा इंट्रोडक्शन दिया. And मैं ज्यादा कुछ नहीं, जैसे मैंने अपने जिंदगी को स्ट्रीमलाइन किया, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट कर अपने आप में मैंने खुशी पाई है, वो मैं अब दुनिया भर से साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ, especially with women. So Queen in the Making is all about the enlightenment, motivation and inspiration of women worldwide. And we mainly target Indian women क्योंकि भारतीय औरतों के साथ मैं और ज्यादा उनके मन को, दिलों को समझ पाती हूँ. And somehow जो मेरे साथ हुआ वही बाकी सबके साथ होता है यूजुअल लाइफ में. So this is a great opportunity because मुझे आप सभी यंगस्टर्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा है. और कहीं ना कहीं अगर लाइफ के इस फेज में हमें समझ आ जाए कि लाइफ में किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है, हम अपने आप अपनी किस्मत लिखते हैं. किस तरीके से लिखते हैं, कैसे हमारे विचार हर पल, हर सेकंड, हर मिनट हमारे आगे आने वाले सर्कमस्टांसेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करूंगी. So this story is all about कल्पवृक्ष. कल्पवृक्ष नाम शायद कहीं ना कहीं आप लोगों ने अब तक सुना हो. जिन्होंने नहीं सुना, इस स्टोरी के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि कल्पवृक्ष क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है. तो एक इंसान थे और अपनी जिंदगी से हताश होकर एक दिन बस अपने घर से यूं ही निकल पड़े. एंड चलते 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 कब वो उन्होंने इतने सारे जंगल पार कर लिए और गुस्से में थे अपनी लाइफ के प्रति, अपने रिलेशनशिप्स के प्रति, जैसे आए दिन हम लोग भी होते हैं. कभी पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड. कभी किसी से हमने एक मनचाहा रिएक्शन एक्सपेक्ट किया कि सामने से वो इंसान हमें इस तरीके से कहेगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा ही रिएक्शन आ जाता है. कई बार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से कुछ पुट इन करते हैं लाइफ में,
लेकिन बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं और हम लोग बौखला जाते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, बिल्कुल फूटी हुई किस्मत है मेरी, एंड मैं शायद कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी लाइफ में, मैं मुझे कभी क्रेडिट नहीं मिलता है मेरे काम का, मैं मेहनत करती हूँ लेकिन मेरे काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है हमेशा, या मुझे तो चाहे कितनी भी मैं मेहनत करूं, कितना भी कुछ कर लूं अपने पेरेंट्स के लिए, मेरे पेरेंट्स कभी मुझे प्यार नहीं देते हैं, मुझे कभी वो फील नहीं कराते हैं जैसा मैं करना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह. So, okay, there have been requests that I should talk predominantly in English, so I'll continue doing that. So, sometimes we get very, very dejected. So, likewise, that person also got dejected and depressed about his life. And he started moving somewhere. चलते चलते चलते, as he was walking, सडनली उन्होंने देखा कि चारों तरफ का एटमॉस्फेयर बहुत ही खूबसूरत हो गया है और सडनली शायद वो कुछ हेवनली स्टेट में पहुंच गए हैं. He has entered maybe the heaven itself, because there was a lot of beautiful things around him, beautiful trees and the breeze and beautiful mountains and everything. The air was so pure and everything was so something very special about it. So he just saw a very sparkling, चमकता हुआ सुंदर सा पेड़, sparkling tree at a distance. और जब उन्होंने वो पेड़ देखा तो वो एकदम से उनके मन में ऐसा हुआ कि मैं जल्दी से जाऊं उस पेड़ के नीचे, आराम से रिलैक्स करूं, कि बहुत अच्छा, बहुत लुक्रेटिव लग रहा है वो देखने में. तो तुरंत से जाते हैं और उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं. और पेड़ के नीचे बैठते ही उनके दिमाग में ऐसे एक विचार आता है कि काश मैं बैठ तो गया हूँ, इतनी दूर भी आ गया हूँ अपने परिवार से, अब काश मेरे पास कुछ खाने के लिए अच्छा सा, इस पेड़ पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ खाने के लिए मिल जाता तो बहुत मजे आ जाते. हाँ, मेरा फेवरेट वो छोले भटूरे, वो वाला पिज्जा, हाँ काश आ जाए ये सब कुछ मेरे सामने. एंड सडन कल्प वृक्ष के नीचे उनके सामने बहुत सारा खाना, उनकी फेवरेट डिशेस जो जो उन्होंने मन में सोची थी वो सब लग जाती हैं. पेट भर के खाना खाते हैं. खाना खाने के बाद उनको रियलाइज होता है कि उनको प्यास लग रही है. वो अपने अच्छे अच्छे ड्रिंक्स इमेजिन करते हैं, हाँ काला खट्टा आ जाए, कहीं से स्प्राइट आ जाए मेरा फेवरेट, कहीं से ये आ जाए वो आ जाए, और वो फाइनली सब कुछ उनके सामने लगा देता है कल्प वृक्ष एक बार फिर से. वो सब पी के काफी रिलैक्स हो जाते हैं और सोचते हैं काश यहाँ पर मेरा प्यारा सा बेड होता तो मैं सो जाता. वहीं पे मखमली जो लीव्स हैं उनके लिए एक बहुत सुंदर सी शैया बिछा देती हैं और वो वहां पे सो जाते हैं, रिलैक्स करते हैं. सडनली उनको रियलाइज होता है कि उन्हें अपने परिवार की भी जरूरत है. तो फिर उनका परिवार वहां पर एक एक करके अपीयर होने लगता है. परिवार के सदस्य बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पीछे से थोड़ा डर लगता है कि ऐसे कैसे हो रहा है, जो भी मैं कुछ सोच रहा हूँ वो सब कुछ पूरा होता चला जा रहा है. Whatever I'm thinking, it's being fulfilled so readily and so easily. What's happening? I hope there are no ghosts around. यहाँ कहीं भूत तो नहीं है. And suddenly वहां पर भूत आ जाते हैं. भूतों को देखते ही वो इतना डर जाता है और कहता है कि अरे यार अब तो मैं मर जाऊंगा, ये दिल किल मी. एंड भूत उनको मार देते हैं. एंड देन RIP, रेस्ट इन पीस. सो कहने का मतलब ये था इस स्टोरी के अंदर कि ये जो एक सुंदर सा पेड़, इमेजिनेशन एंड द हेवनली अबॉर्ड एंड एवरीथिंग इज इनसाइड हियर, इनसाइड आवर माइंड. तुम खुद ही सोचो, कई बार हमारा मूड जब बहुत अच्छा होता है ना, कुछ बहुत अच्छा हो गया होता है हमारे साथ लाइफ में, तो हम लोग चल रहे हैं और किसी ने चलते चलते हमें कोई बुरा कमेंट भी पास कर दिया. किसी ने हमें चलते चलते दो चीजें भी सुना दी. हमें ऐसे लगे कि अरे यार क्या मतलब, कोई एकदम से कोई हमें बौखला के कुछ बोल भी दे, तो भी when we are in a good mood, when we are in a good frame of mind, we actually overlook those things, है ना. हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उसे भी शांत करा देते हैं, ठंडा करा देते हैं, एक स्माइल पास कर देते हैं, अरे यार चिल मारना, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, डोंट वरी, ठीक है चल आजा चाय पीने चलते हैं. मतलब everything, the entire perspective is here. And while on the other hand, जब हमारा मूड बहुत खराब होता है, we are somehow depressed about something or sad or feeling frustrated about something, तो हम बाहर जाते हैं और किसी ने हमें अगर कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया ना, अरे वाह आज तो बड़ी अच्छी दिख रही है, कहाँ से लाई थी ये ड्रेस,
हाँ आज ही अच्छी दिख रही हूँ, हाँ क्या मतलब इस ड्रेस की वजह से अच्छी दिख रही हूँ, वैसे मैं अच्छी नहीं होती हूँ। मतलब भी एकदम से हम लोगों का जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट रिएक्शन आ जाता है। So if somebody is trying to cheer us up also, अगर हमारा पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं है अपने चारों तरफ के प्रति, हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। So everything, each and every circumstance, each and every condition around us is actually managed and interpreted by us inside us. And that kind of interpretation which we make inside us using our thoughts, feelings, that creates the very next moment for us. समझे आप? चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा मेटाफिजिक्स के लैंग्वेज में समझते हैं। We all understand the basic science terms like atoms, like molecules, energy, है ना? हम सब ने एनर्जी की डेफिनेशन सीखी है 9th स्टैंडर्ड से। Energy can neither be created nor it can be destroyed. It can only be transformed from one form into the another, है ना? एक बॉल को हमने पकड़ के छोड़ा तो बॉल जब हाथ में होती है तो आई थिंक इट्स पोटेंशियल एनर्जी। देन जब हम छोड़ते हैं वो हवा में नीचे जा रही होती है, इट्स काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही वो नीचे टच करती है जमीन को, अगेन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज क्रिएटेड। सो एनर्जी को हम कभी मार नहीं सकते, उसको हम कभी पैदा नहीं कर सकते, उसे हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट? एंड एनर्जी किस बेसिक मॉलिक्यूल से बनी होती है? एटम से। इवन एटम को भी अब हम लोगों ने, साइंटिस्ट्स ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल, एक नेगेटिव मॉलिक्यूल, है ना? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल। अब वी फील कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ये सब कुछ सॉलिड सॉलिड छोटे छोटे धूल जैसे कण पार्टिकल्स होंगे, है ना? ऐसे हमारे दिमाग में आता है, बट नो, दे आर एक्चुअली वेव्स। दे आर नॉट मॉलिक्यूल्स, दे आर वेव्स, दे आर एनर्जी फॉर्म्स। नाउ हम सब इन 3 बेसिक पार्टिकल्स से बने हैं। My camera through which I'm talking to you, your phones, your laptops through which you are hearing me, seeing me, it's all atomic energy, right? मैं एटम से बनी हूँ, तुम एटम से बने हो, हवा एटम से बनी है, टेबल, चेयर, जहां तुम बैठे हो, entirely it's an atom game. एटम्स जब ऐसे 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 फ्लोट कर रहे हैं, कहीं पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो हवा बन गया। जब थोड़ी सी उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हुई तो वो हल्का सा एक सॉलिड की तरफ मूव करते हैं या लिक्विड की तरफ मूव करते हैं, पानी बनाते हैं। जब एटम इतनी स्पीड पे मूव करता है कि उसे एक दूसरे से अलग करना, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, तो वो हमारे लिए सॉलिड सरफेस की तरह बिहेव करता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसपे हम बैठ सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, right? So all in all, we all are same from inside. The basic constituents inside us, the composition is same, exactly same. तो हमें अलग क्या चीज करती है? अलग करती है हमारी वाइब्रेशंस। अगर मेरे एटम्स किसी ऐसे 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 वाले पैटर्न में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो तुम्हारे एटम्स हो सकता है ऐसे 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 वाले पैटर्न में वाइब्रेट कर रहे हो, किसी और के एटम्स किसी और तरीके से वाइब्रेट कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ वी लुक सो मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वी बिहेव डिफरेंटली एंड वी फील डिफरेंटली अबाउट ईच अदर, राइट? सो वाइब्रेशंस इज द मेन थिंग। अब हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुना है ना नाम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये कल्प वृक्ष की कहानी, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर उस इंसान ने जैसा जैसा सोचा उसे वही सब कुछ मिलता गया, राइट? सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने एटम्स की वाइब्रेशन को इंक्रीज करना, बढ़ाना होगा। अच्छा चलो ये बात बताओ, जैसे कई बार पार्टीज होती हैं, हम लोग पार्टी में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों को जानते हैं, कई लोगों को नहीं भी जानते। जिन लोगों को हम नहीं जानते, कई बार ऐसा होता है कि उनसे मिले बिना, इवन उनसे बात करे बिना, है ना, सिर्फ उनको देखकर एक डिस्टेंस से वी फील अ रिपल्शन। ऐसे लगता है नहीं यार इससे बात नहीं करूंगी, मतलब
नो ही इज नॉट माई काइंड, ऐसा लग नहीं रहा है, अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे हैं, बोलते हैं ना हम लोग। या फिर कई बार किसी इंसान को देखकर एकदम से ऐसा लगता है कि अरे यस, शी इज माई फ्रेंड और ही इज माई फ्रेंड, दिस इज द पर्सन आई वॉन्टेड टू टॉक टू, थैंक गॉड दिस पर्सन, दिस काइंड ऑफ पर्सन इज देयर इन द पार्टी। ऐसा फील होता है बिकॉज द वाइब्स आर राइट, द वाइब्स आर इन सिंक विद योर वाइब्स, राइट। बिल्कुल वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में फुलफिल करने के लिए you need to get your vibes in sync with the vibes or the vibrations of the universe, nature की vibrations। कभी भी अगर हम किसी नेचुरल जगह पे जाते हैं, पहाड़ है, झरना है, पेड़ हैं, ग्रीनरी है, हाँ, बहुत अच्छा किसी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में जा रहे हो आप, या आप किसी हिल स्टेशन पे विजिट कर रहे हो, या फिर सिंपली समुद्र के किनारे खड़े हो रहे हैं, है ना, या फिर कई बार इवन रात को छत पे खड़े होके बस चांद को देख रहे हैं, स्टार गेजिंग कर रहे हैं, सिंपल नेचुरल कॉन्टैक्ट, वी फील रिलैक्स्ड, डोंट वी? हमें बहुत पीसफुल फील होता है। जैसे टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, तो मम्मी पापा यूजुअली क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ के ना थोड़े ओपन स्पेस में जाओ बेटा, चलो जाओ थोड़ा बाहर घूम के आओ, यानी कि नेचर के टच में होके आओ, थोड़ा सा जाओ, थोड़ा पेड़ों के साथ बैठो, थोड़ा पौधों से बातचीत करो, थोड़ा हवा लेके आओ, नेचुरल हवा लेके आओ, एसी वाले कमरे से बाहर निकलो, तुम्हारी टेंशन कम हो जाएगी। बिकॉज द नेचुरल वाइब्स, नेचुरल वाइब्रेशंस आर वेरी हाई, दे आर सो मच रिलैक्सिंग, और उन्हीं नेचुरल वाइब्रेशन से एक्चुअली एक इंसान का जन्म होता है। एंड हम लोग कहीं ना कहीं अपनी वाइब्रेशंस को डैम्पन करते जाते हैं, कम करते जाते हैं एज वी लिव लाइफ अनकॉन्शियसली, माइंडलेसली, रोबोटिक वे। खाना खा रहे हैं तो पता ही नहीं क्या खा रहे हैं, कई बार पूरा खाना खत्म हो जाता है एंड वी आर जस्ट डेल्व्ड इन अ थॉट, और हमें पता ही नहीं चलता खाना खत्म भी हो गया, क्या टेस्ट था, क्या सब्जी खाई, कोई पूछे अच्छा आज खाने में क्या था, हाँ कुछ तो था यार, कुछ तो था, शायद तो अचार तो था, कुछ तो था, मतलब sometimes we are not even able to tell what we have just eaten 5 minutes back। कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं, अभी भी शायद तुम्हारे साथ हो रहा हो, मैं बात कर रही हूँ, एंड मे बी यू नो हाफ ऑफ यू आर सिंपली मेरे कुछ चीजें सुन के कुछ कोरिलेट करने लग गए, किसी इंसिडेंट्स में चले गए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद ऐसा हुआ था, इधर मेरी बातें चले जा रही हैं, तुम्हारा कान का मोड ऑन है, रोबोटिक तरीके से सुने जा रहे हो, बट देन यू आर लॉस्ट समवेयर एल्स। सो जब हम लोग इस तरीके से लाइफ को जीते हैं, जब हमारा प्रेजेंट टेंस में हमारा पूरा रहना नहीं हो पाता, और हम लोग कहीं ना कहीं अपने वाइब्रेशंस को कम कर लेते हैं, जब वाइब्रेशंस कम होती हैं तो हमें लाइफ, हम जी नहीं पाते, लाइफ हमारे ऊपर हावी हो जाती है। समझो, these are both different terms। एक होता है लाइफ को खुल के जीना, आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कब आता है, ठीक है, मे बी a few of you are studying arts, a few are in economics, a few have maybe you know life sciences in hand। आपको कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कब आता है, कोई भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट कब बनता है, जब आप उसे समझ पाए, राइट, जब हम उसे समझ पाते हैं, व्हेन वी अंडरस्टैंड इट। बिल्कुल वैसे ही लाइफ में भी मजा तब आता है जब हम जिंदगी को समझ पाते हैं। एंड जैसे बाकी सब साइंस में, मैथ्स में, हर एक सब्जेक्ट में अपने रूल्स हैं, इकोनॉमिक्स में भी अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉज हैं, राइट, आर्ट में भी कुछ लॉज हैं, इवन कुकिंग के कुछ रूल्स होते हैं, राइट, समथिंग एज बेसिक एज कुकिंग, इट हैज रूल्स, अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे आप एक अच्छा कुक नहीं बन सकते, आप खुद का पेट नहीं भर सकते। तो वैसे ही लाइफ के कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, राइट, एंड अगर आप उनको समझ सकें, अगर आप लाइफ एनर्जी के साथ इन सिंक होकर फिर आगे बढ़ें, then you will realize that life is actually very interesting and you'll start living your life for real। So when we increase our vibrations, कैसे होती हैं vibrations increase? By being more mindful। How do we stay mindful? Can anyone tell me here? मैं हटा देती हूँ अपना माइक्रोफोन।
If you people want to say something in between, how do you feel that you can stay mindful? Anyone? कोई बताना चाहेगा? Mindfulness आपके हिसाब से क्या है? Consciously जीना आपके हिसाब से क्या है? Ma'am, by living in the present, we live mindfully. By living in present, Yuvraj, you're right, but how do you live in present? What are your techniques to live in the present tense? Ma'am, by having a understanding that the future and the past will never be useful to us, of thinking of the present and the past, of present and of the past and the future. Just Right. thinking of the present will be beneficial to us, and it's totally in vain to think something that has happened already or something that is yet to happen. Right, right, wonderful. Anyone else? Anyone? Do you understand mindfulness? Any which ways मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, but still I just wanted to know आप लोग कैसे समझते हैं कि present tense में रहना क्या होता है? Okay, so go ahead. Present tense, जैसे युवराज ने कहा बहुत ब्यूटीफुली, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में ना सोचना, बट ये हमें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है. ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है. मतलब even if you are talking about what I spoke just 5 minutes back, you're actually thinking about past, right? So, and if you are thinking about what to answer about this question which Dr. Shivangi is asking, you're actually thinking about the future. So actually present tense क्या होता है? मतलब how do we decide that we're actually in our present tense? When thinking is aborted. जब हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ी सी देर के लिए भी शांत हो जाता है, हम लोग माइंडफुल हो जाते हैं. एंड हाउ डू वी डू दैट? थॉट प्रोसेस कभी शांत हो भी सकता है. वी रिलेट आवरसेल्व्स सो मच टू आवर थॉट्स. कभी गलती से किसी के बारे में कोई गलत थॉट भी आ जाए, वी गेट इनटू अ गिल्ट ट्रिप. हमें लगता है कि अरे यार मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, इसका मतलब मैं गलत इंसान बनती जा रही हूँ. बिकॉज वी कोरिलेट आवरसेल्व्स टू आवर थॉट्स सो मच. हमें लगता है जो भी हम सोच रहे हैं वही हम सब कुछ हैं. बट देन there is always a technique, there is always a law and a rule how to stay mindful. So जब भी आप लोग किसी भी compulsive thought के घेरे में पड़ जाएं, mindfulness के ये 5-6 तरीके जरूर फॉलो करना. ठीक है. Number 1, try and start breathing deeply. कैसे breathe करते हैं deeply? मुझे 30 साल की उम्र में ये पता चला कि मैं पिछले 30 साल तक जैसे सांस ले रही थी वो गलत तरीका था. सोचो, सांस की वजह से हम जिंदा रहते हैं. सांस है तो हम हैं. जिस दिन सांस नहीं होगा, यू आर नो लॉन्गर देयर. ऑल योर रिलेशनशिप्स आर गॉन, यू आर गॉन, एवरीथिंग रिलेटेड टू यू, योर वर्ल्ड इज गॉन, राइट? सो सांस ही हमारा एक जरिया है इस जिंदगी में बने रहने का, और हम लोग सांस ही गलत तरीके से लेते हैं. सो व्हाई नॉट जस्ट स्टार्ट विद improving or start with rectifying our breathing technique. So, अभी मेरे साथ बैठे बैठे आराम से हम कर सकते हैं. आप अगर दिन में 5 या 6 अलार्म्स लगाएं अपने फोन पर, every 2 hours just one alarm, and हर एक अलार्म बजने पर आप 2 मिनट के लिए ढंग से ब्रीथ करेंगे जैसे आपको करना चाहिए, तो आप धीरे धीरे माइंडफुल लिविंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे. ओके? कैसे ब्रीथ करना है? जब हम सांस अंदर लें तो हमारा नेवल एरिया बाहर आना चाहिए. हमारा पेट है वो फूल जाना चाहिए. इट्स जस्ट अ बलून कॉन्सेप्ट. बलून के अंदर हवा जाती है, सांस अंदर जाता है तो बलून फूल जाता है. एंड सांस जब बाहर जाए तो बलून पिचक जाए, यानी कि पेट अंदर चला जाए, नेवल एरिया अंदर चला जाए. ओके? सो कीपिंग योर शोल्डर्स स्टेबल, वील जस्ट ब्रीथ इन. ठीक है? आपका पेट फूल जाएगा. अब थोड़ा सा 2-3 सेकेंड वेट करो ब्रीद इन करने के बाद, और फिर अब ब्रीद आउट करो. जितना हो सके उतना ब्रीद आउट करो. बिल्कुल टमी को चिपका लो. ठीक? फिर से ब्रीद इन करो. ब्रीद इन हमेशा छोटा होता है. ब्रीद आउट टाइम ब्रीद इन टाइम के ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए. ओके? सो वी टेक अ रूल ऑफ 4:8, यानी कि 1:2.
4 seconds breathe in. 1, 2, 3, 4. ब्रीद इन किया. अब 4 सेकंड के लिए रुक जाओ. 1, 2, 3, 4. Then 8 seconds breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then again wait for 4 seconds. Got it? 4 सेकंड के लिए अंदर लेना है, 4 सेकंड रुक जाना है, प्लेटियो फेज. फिर 8 सेकंड तक अपने सांस को बाहर निकालना है, एक्सलेशन अंडरगो करना है, एंड देन 4 सेकंड के लिए वेट करना है. सो दिस इज द करेक्ट टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग. एंड जब आप अच्छे से ब्रीद करते हैं, लंबी लंबी सांसें लेके ब्रीद करते हैं, तो आप माइंडफुली जीना शुरू कर देते हैं. क्योंकि आपका ध्यान, या तो आप सोच सकते हैं या आपका ध्यान ब्रीदिंग पे हो सकता है. इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है. तो अगर आपका ध्यान ब्रीदिंग पे है, यानी कि आप उस टाइम सोच नहीं रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस हॉल्ट पे आ गया है. थॉट प्रोसेस हॉल्ट पे आना यानी कि आप ना पास्ट में हैं इस टाइम, ना आप फ्यूचर में हैं, आप सिर्फ प्रेजेंट में हैं. ओके, सो दैट इज रूल नंबर 1, इजी वे टू बी माइंडफुल. नंबर 2, हाउ टू बी मोर माइंडफुल इज activate your senses. दिन में बस 1 या 2 बार कभी भी अपनी आंखें बंद करके आराम से सुनना शुरू करो कि तुम्हारे कानों में और कौन कौन सी साउंड्स पड़ रही हैं. कौन सी ऐसी साउंड्स हैं जो अब तक तुम मिस कर रहे थे. चिड़िया, पंखा, एसी, कहीं से कुछ कुचुर कुचुर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बाहर कोई पक्षी बोला, किसी की सांसों की आवाज, तुम्हारी खुद की सांसों की आवाज आएगी. एक एक चीज, जस्ट ट्राई एंड लिसन टू व्हाटएवर यू कैन विद योर ईयर्स. नंबर 2, अपने नाक को एक्टिवेट करो. ट्राई एंड स्मेल व्हाटएवर इज अवेलेबल अराउंड यू. ट्राई एंड स्मेल एज डीपली एज पॉसिबल कि क्या क्या अवेलेबल है. हम लोग स्मेल करना भूल चुके हैं. खाना होता है, हमें पता नहीं होता किस खाने की कैसी सुगंध है. यू नो, एवरीथिंग सीम्स सो सिमिलर टू अस बिकॉज हम लोगों ने अपने सेंसेस को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माइंडफुलनेस. टेस्ट है, जब रोटी का एक निवाला मुंह में डालते हो, आंख बंद करके सिर्फ पूरा ध्यान उसके ऊपर रखो. How is it tasting? How is it melting in your mouth? How are your teeth moving to chew it properly? How is your tongue helping to get that food in a digestible form? इस तरीके से अपना पूरा ध्यान अपनी chewing पर, अपने टेस्ट पर लेके आओ. So likewise, आप जैसे जैसे अपने सेंसेस को एक्टिवेट करेंगे,